Assalamu alaikum. My name is Raha Javeen from Division of Arts and Social Sciences for the subject of History of Western Arts. Today we discuss Surrealism. Surrealism is an art movement of late 1910 and early 20th century. Main points of we discuss today are inspiration, famous artists of Surrealism, main characteristic of Surrealism, and origin of Surrealism movement. Inspiration. Influenced by the writing of psychologist Sigmund Freud, the literary, intellectual, and artistic movement called Surrealism sought a resolution against the constraint of the rational mind and by extension the rules of society they saw as oppressive. अभी क्या था, एक साइकोलॉजिस्ट था सेगमेंट फ्रॉड, उनकी जो एक थ्योरी थी, उनकी जो राइटिंग्स थी उन पे बेस ये मूवमेंट थी कि जो हमारी माइंड की जो हमारे एक कॉन्शियसनेस की जब हम बात करते हैं जो कि हमें एक नेचुरल एक रेगुलर वे से हट के जो है वो चीज़ें जब हम देखते हैं या उसको विजुलाइज करते हैं या इमेजिन करते हैं तो उसकी बेस पे ये थी सारी मूवमेंट थी। इसके फेमस आर्टिस्ट हैं सेल्वाडोर डाली, जेन आर्क, मैक्स अर्नेस्ट, रैन मैग्रेट, जॉन मैरियो, पेरी रॉय, पॉल डिक्सेस. Introduction. Surrealism movement is a visual art and literature flourishing in Europe between World War One and World War Two. Basically, World War One और टू के दरमियान में जो एक आर्ट मूवमेंट आई, जो एक विजुअल और लिटरेचर की मूवमेंट आई, उसको जो है वो surrealism का नाम जो है वो दिया गया है. Surrealism grew principally out of the earlier Dada movement, which before World War One produced work of anti-art that deliberately defies reason. By surrealism emphasis not on was not on a negation but on positive expression. अब इनका ही क्या मानना था surrealism वालों का कि surrealism movement का कि we deliver we showcase positive expression, कि हम एक जो है वो positive expression देंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो थे इतनी चीज़ें डिप्रेशन एनजाइटी और साइकोलॉजिकल इलनेस इतनी ज़्यादा थी, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए दे फोकस मोर ऑन पॉजिटिव एक्सप्रेशंस. The movement represents a reaction against what its members saw as the destruction wrought by the rationalism that had guided European culture and politics in the past and that had culminated in the horror of World War One. कि जो एक रैशनलिज़म की चीज़ कल्चर था, पॉलिटिकल थी यूरोप में, और वर्ल्ड वॉर वर का जो एक वो हॉरर इन्वायरमेंट था, उस चीज़ को जो था वो उसके रिएक्शन में जो थी मूवमेंट जो थी ये स्टार्ट हुई थी. अकॉर्डिंग टू द मेजर स्पोकन man of the moment, the poet and critic Andrew Britton, who published the Surrealist Manifesto in 1924. Surrealism was a mean of reuniting conscious and unconscious, the arm of experience so completely that the world of dream and fantasy would be joined to the everyday rational world in an absolute reality, a surreality. कि क्या था कि जो उन्होंने उस टाइम पे एक्सपीरियंस किया, एक एमेलगमेशन थी कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस की, कि एक फैंटेसी वर्ल्ड और एक ड्रीम वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, तो उन्होंने अपनी रियलिटी को जो था वो उस रियलिटी की फॉर्म में जो था उन्होंने रिप्रेजेंट किया. Drawing heavily on theories adapted from Sigmund Freud and saw the unconscious as the wellspring of the imagination. कि जो unconscious थी उसका बेसिकली जो था वो उसकी मेन जो था वो की थी सोलिज्म पेन movement की. He defined genius in terms of accessibility to his normally untapped realm, which he believed could be attained by poets and painters alike. कि जो था कि जब उन्होंने उस चीज़ पे काम करना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ पे जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लोगों को गेन कर सकते हैं. मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मूवमेंट आर ड्रीम लाइक सीन्स एंड सिम्बॉलिक इमेजेस, unexpected illogical juxtapositions, bizarre assemblage of ordinary objects, automatism and spirit of spontaneity, games and techniques to create random effects, personal iconography, visual puns, distorted figure and biomorphic shapes. अब ये क्या थे, अब आप आगे जाकर जब काम देखोगे तो आपको सारे ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे जो है आपको वो नज़र आएंगे. Origin of Surrealism. Surrealism originated in the late 1910 and early 20th century as a literary movement. Basically जो था
ये लिटरेचर में मूवमेंट आई थी। लिटरेचर में उन्होंने ज़्यादा फेंटिसाइज करना चीज़ों को शुरू किया था, ज़्यादा जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस के एक ड्रीमी वर्ल्ड थी उस पर जो था वो उस चीज़ को ज़्यादा इन्हेंस किया था। इसी बेस पे जो थी वो ये मूवमेंट जो भी थी वो स्टार्ट हुई थी। यूजिंग फ्रीडियन मेथड ऑफ फ्री एसोसिएशन, देयर पोइट्री एंड प्रोज ड्रू अपॉन द प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ द माइंड, traditionally restricted by reason and shared limitation, to produce surprising, unexpected imaginary. Their cerebral and irrational beliefs of surrealism find their ancestry in the clever and whimsical disregard of tradition fostered by Dadaism and अभी क्या था कि उन्होंने जो चीज़ें वो सारे लिटरेचर में हो रही थी, तो जो उस टाइम के पेंटर्स थे उन्होंने वो चीज़ें जो था वो एक उसको इमेजिन एक इमेजिनरी एक विजुअल देना जो है वो उसको स्टार्ट कर दिया। The visual artists who first worked with surrealist technique and imaginary were the German Max Ernst, a French man Andrew Masson, and Spaniard John Mario, and American Man Ray। अब ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले इन surrealist टेक्निक पे जो था वो काम करना स्टार्ट किया था। अब जब हम आर्टिस्ट की बात करते हैं तो आर्टिस्ट इसमें सबसे पहले जॉन मैरियो आ जाता है। persist experimentation and a lifelong filtration with non-objectivity stamp Jan Mario magnificent mark on the art world. His canvases represent a sandbox for his subconscious mind, out from which sprang of a vigorous lust for the childlike and a manifestation of his Catalan pride। अब ये क्या था कि बेसिकली उन्होंने जो था एक इमेजिनरी चीज़ पे एक फैंटेसी चीज़ पे जो थी वो चीज़ें के शुरू कर दिया था, लेकिन हर एक का जो स्टाइल था वो डिफरेंट था। कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स में काम करता था, एब्स्ट्रैक्ट सेम था, सेमी एब्स्ट्रैक्ट था। जैसे जॉन मैरी की बात करें इनका काम जो था वो ज़्यादा बायोमॉर्फिक फॉर्म्स थी, पिक्टोरियल साइन थे बायोमॉर्फिक फॉर्म। लाइक उन्होंने जो नेचुरल चीज़ें थी उनको जो एक शेप में बेसिक शेप में कन्वर्ट करके जो थी वो यूज़ करते थे, ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ करते थे, एब्स्ट्रैक्ट सेमी एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट जो थे वो यूज़ करते थे। He radically invented style, was a critical contributor to the early 20th century avant-garde journey toward increasing and then complete abstraction। ये जो था शुरू शुरू में उन्होंने इस तरह से सेमी एब्स्ट्रैक्शन में काम किया, लेकिन बाद में जो था वो टोटल एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जो है वो चले गए। अभी आपको उनका एक द फार्म ऑयल ऑन कैनवस जो है वो एक पेंटिंग है, आप नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से उन्होंने जो है वो चीज़ों को जो है वो डिवाइड किया है ज्योमेट्रिकली बायोमॉर्फिकली, और एक फ्लैट सी आपको चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। इसी तरह से ही इनका बेसिकली क्योंकि उनका जो काम था वो कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड पे था, जो एक चीज़ वो एक्सपीरियंस कर रहे थे उस वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में, या उसके बाद में ये काम बेसिकली उस अनकॉन्शियस और कॉन्शियस की एमेलगमेशन का काम जो है वो है। इसी तरह से ये उनके कुछ स्कल्पचर्स हैं, मून बर्ड और वुमेन एंड बर्ड। मैक्स अर्नेस्ट की जब हम बात करें, जर्मन बॉर्न मैक्स अर्नेस्ट वाज अ प्रोवोकेटर, अ शॉकिंग एंड इनोवेटिव आर्टिस्ट हु माइंड हिज अनकॉन्शियस फॉर ड्रीम लाइक इमेजिनी दैट मॉक सोशल कन्वेंशन। हम ये कहते हैं कि उन्होंने बेसिकली जो सोशल कन्वेंशन जो सोशल एक नॉर्म थी उस चीज़ों को उनके माइंड सेट ने जो था वो बिल्कुल रिजेक्ट किया, और फिर उनका जो काम था वो हमें देखने को डिफरेंटली नज़र आया। Ernest's artistic vision, along with his humor and verve, come through strongly in his Dada and Surrealist work. Ernst was a pioneer of both movement। अब अर्निस्ट जो है वो surrealism और दादाइज्म दोनों के जो है एक जो है पायनियर माने जाते हैं। स्पेंडिंग द मेजॉरिटी ऑफ हिज लाइफ इन फ्रांस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, अर्नेस्ट was categorized as an enemy alien. The United States government affixed the same label when Ernst arrived as a refugee। अब उनको जो था वो एक एनिमी एलियन का नाम दिया गया, क्योंकि उनके एक माइंड सेट की वजह से, उनकी अपनी एक स्कूल ऑफ थॉट एक आइडियोलॉजी की वजह से, और जो वो काम करते थे उसकी वजह से। हिज वर्क विद द अनकॉन्शियस, हिज सोसाइटी सोशल कॉन्टेरी एंड ब्रॉड एक्सपेरिमेंटेशन बोथ सब्जेक्ट इन टेक्निक रिमेन इन्फ्लुएंशियल, and was one of the first artists to apply segment-fed dream theories, investigate his deep psyche in order to explore the source of his own creativity। अब ये था क्या था, जो एक सेगमेंट फिट की थ्योरीज जो थी उसने सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पे जो थी वो बनाई थी, या उसने जो किया था
मैनिफेस्टो दिया था, उस पे जो था इन्होंने जो था वो विजुअली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, और पर्सनली उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद जो था वो उस चीज़ को जो है एक इमेजिनरी फॉर्म जो है वो लेके आए। अब ये उनकी एक पहली पेंटिंग है, हियर्स एवरीथिंग इज स्टिल फ्लोटिंग। आपको नज़र आ रहा होगा कि फिश को जो है किस तरह से जो है वो स्काई में फ्लोटिंग एक इमेजिनरी चीज़ में जो है उन्होंने दिखाया है। इसी तरह से सिलेबस एक एलिफेंट को उन्होंने किस तरह से एग्जेजरेटेड फॉर्म में और एक बहुत ही ड्रीमी और फैंटेसी चीज लुक में दिखाया। इस तरह से टू टू चिल्ड्रन आर थ्रेटन बाय नाइट एंजल। अब ये किस तरह से जो है वो एक उन्होंने एक इमेज क्रिएट किया है कि दो बच्चे जो हैं वो एक नाइट एंजल की वजह से जो है वो डरे हुए। तो वो बेसिकली ये क्या था कि एक सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की जो थी वो सारी इमेजनरी थी। ये इस तरह से उनका एक स्कल्पचर है, क्योंकि उन्होंने सारी डोमेन्स पे काम किया था। इस मूवमेंट के जो आर्टिस्ट है उन्होंने पेंटिंग में भी और स्कल्पचर में भी, दोनों चीज़ों में जो था वो ज़्यादा काम किया था। अब Salvador Dali is among the most versatile and prolific artists of the 20th century and the most famous surrealist। कि surrealism की जब हम बात करते हैं तो Salvador Dali is one of the famous artists of this movement, though chiefly remembered for his painted output. In the course of his long career, he successfully turned to sculpture, printmaking, fashion advertisement, writing, and perhaps most famously filmmaking in his collaboration with Louis Bonner and Alfred Hitchcock। अभी क्या था कि इसने इन्होंने हर डोमेन पे जो था अपना एक्सपेरिमेंट जो था वो किया था। डाली वॉज renowned for his a flamboyant personality and role of mischievous provocateur as much as for his undeniable technical वेरोसिटी। अभी क्या था कि वो अगर वो क्या उनका एक अपीयरेंस जब वाइज देखते हैं तो वो बहुत ही उनकी एक हमें एक कॉमिक सी फनी सी लगती है, लेकिन वो टेक्निकली जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इन हिज अर्ली यूज ऑफ ऑर्गेनिक मॉर्फोलॉजी हिज वर्क बेस्ड द स्टैम्प ऑफ फेलो स्पेंटियर, पेब्लो पिकासो एंड जॉन मैरियो। कि जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया गया था इनकी तरफ से। हिज पेंटिंग ऑल्सो events of fascination for classical and renaissance are clearly visible through his hyperrealistic style। अब उनका जो स्टाइल था काम करने का, चाहे वो सिंबलिस्टिक था, बहुत ही एक एम्बिगुअस सा था, लेकिन उनकी जो रिफाइंड फॉर्म थी वो बहुत ही रियलिस्टिक फॉर्म्स में वो आती थी। Obsessive theme of erotic death and decay permeate Dali's work, reflecting his familiarity with and synthesis of the psychoanalytical theories of this of his time। उन्होंने टेक्निकली भी अपनी थ्योरेटिकली भी अपनी जो पेंटिंग्स थी, अपना जो काम था उसको जो है वो इन्हेंस किया था। अब ये जिस तरह से उनकी एक पेंटिंग है, अगर आप करोगे तो आपको प्लेएबल चीज़ ये नज़र आएगी। ये उनकी एक छोटी सी फिल्म है जो कि उन्होंने एक बनाई थी। ये उनकी बहुत फेमस पेंटिंग है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। आप देख सकते हो कि मेल्टिंग क्लॉक किस तरह से उन्होंने दिखाए हुए हैं, और अगर आप जूम करके देखोगे तो ये एक ह्यूमन फेस है, और एक क्लॉक में किस तरह से उन्होंने एक इमेजिनरी वर्ल्ड को जो है वो किस तरह से जो उन्होंने दिखाया हुआ है। इस तरह से क्रूसिफिकेशन है कि जैसे भी हम बात करते हैं, क्राइस्ट की बात करते हैं, तो वो किस तरह से उनको क्रॉस में किस तरह ये उनकी अपनी एक डिपिक्शन है किस तरह से जो किया था। अब जब हम उसमें प्रोडक्ट में आ जाते हैं या स्कल्पचर की फॉर्म में आए थे, तो ये उस टाइम का बहुत फेमस लॉबस्टर टेलीफोन था जो कि डाली ने जो था वो डिज़ाइन किया था। इसी तरह से द माई वेस्ट ब्रॉच था, ये भी क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी उस टाइम पे। जो था आर्ट जो था 90s और 20s का वो टाइम है जहाँ पे आर्टिस्ट ने बहुत सारी डोमेन्स को जो है वो टच किया था। एक्सपेरिमेंटेशन उस टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, और इसी तरह से जो है वो उन लोगों ने नई नई जो अपने आर्ट पीस जो थे वो निकाले थे। और जिस तरह से इस मूवमेंट में आपने देखा कि बहुत ही आपको एक एम्बिगुअस सा, एक बहुत ही एग्जेजरेटेड फिगर्स और बहुत ही अलग अनकॉन्शियस से आपको जो है वो सब्जेक्ट मैटर मिलेंगे। रियलिटी से हट के जो था वो लोगों ने अपने माइंड पे, अपनी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पे, और उनकी जो एंजाइटी थी
कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, उस चीज़ पे जो था उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो है वो जो काम करना है उसको एक्सपीरियंस करने के बाद जो है वो काम करना जो है वो स्टार्ट किया था। अब आई होप कि आपको surrealism जो है वो समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।